class 10, welcome back to our channel. So 10th class, we are doing our chapter number 1, that is investment basics, from our book Introduction to Financial Markets. Yes, and basically this is our second video of this chapter. Till now we have covered the very small and basic concepts of this chapter, and today we'll start with this topic, that what is meant by interest. So interest means when we borrow money, we are expected to pay for using it. Yes, this is known as interest. So what do you understand by this line? Yes, suppose you are taking money from your friend or from the bank, and after some time when you repay that money to the bank, then not only the amount that you took from the bank you will pay, no, you have to pay some extra with that amount. Like if you are borrowing 100 rupees, then after some time you have to pay 120 maybe. So ये जो 20 rupees है, you can see the extra amount. This is the principal amount and this is the extra amount. This extra amount is called interest. Okay, so basically interest is depend on different banks के policies क्या हैं. It depends on the loan terms and condition. So it may be variable. Okay, and it will be calculated on percentage only. So it cannot be fixed. तो fixed नहीं है, variable होता है, depends on the terms of the loan. Okay, now the second topic is what factors determine interest rate. As I said already that the interest rate is not fixed. It may be variable. It can be increased, decrease after some time. Depends on the bank's norms and condition. But some factors are there. कुछ तो factors होंगे जो interest rate को fix नहीं कर पा रहे हैं और ये fluctuate हो रहा है, कभी ऊपर और कभी नीचे. आपने बहुत बार सुना होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया. सो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट? कुछ तो रीजंस रहे होंगे. तो यस, रीजंस बिल्कुल होते हैं. एज डिमांड ऑफ मनी, दैट डिमांड क्या है मनी का मार्केट में, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट. Yes, so demand कैसा है मनी का? Right now at the time of COVID situation, demand बहुत है मनी का. People need money this time. But is it okay कि जितना demand है उतना supply किया जा रहा है? Demand is increasing day by day because economic activities are not properly working at this time. But what about the supply factor? Supply same condition में नहीं हो रहा. Economy में money नहीं है क्योंकि lacking of economic activities. So the point is interest rate इस चीज़ पर भी depend करता है कि आपके demand क्या है money का, market में demand for money कैसा है. Okay. Now the second point is level of government borrowings. So government ने कितना borrow किया हुआ है money, वो भी डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कितना लगाया जाएगा. देन द सप्लाई ऑफ मनी ऑल्सो. सप्लाई ऑफ मनी कैसे? लाइक सपोज कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एट द टाइम ऑफ कोविड लोगों को बहुत ज़रूरत है मनी की, बट इकोनॉमी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा तो सप्लाई नहीं हो रही. सपोज कीजिए इसका उल्टा हो जाए, मार्केट में बहुत सारा मनी आ जाए, सप्लाई बहुत हो जाए, बहुत सप्लाई हो जाए मनी, देन गवर्नमेंट क्या करेगा? अब गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ेगा ना. इतना ज़्यादा मनी आ जाएगा अगर मार्केट में तो वैल्यू तो बहुत डाउन होने वाली है. देन गवर्नमेंट विल टेक सम स्टेप्स. गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस सम पॉलिसीज. लाइक आपने कभी सुने भी होंगे कुछ स्कीम्स निकालना जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कराएगी अपने कस्टमर्स से, या फिर जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो बहुत बढ़ा देगी. सेविंग इंटरेस्ट का रेट में भी डिक्रीज कर दिया जाए. इससे क्या होगा? इकोनॉमी में मनी की सप्लाई थोड़ी सी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी. तो यस, सप्लाई ऑफ मनी इज वन ऑफ द फैक्टर जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है. देन द इन्फ्लेशन रेट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इन्फ्लेशन. जब आपके मनी की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है
ठीक है. सो इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द वे, वन ऑफ द क्राइटेरिया वी कैन से. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, द बैंकर्स ऑफ द बैंक, दैट इज RBI, and the government policies also affect the interest rate. So these are the some factors which determine the interest rate of any economy. Okay, now the next point is, what are the various options available for investment? So yes, investment की हम बात कर रहे हैं, तो we should know कि हम investment कहाँ पर करें, कौन से options are available. So yes, here we have two options. One is physical asset and second is financial asset. Asset is like an very important thing जिसको आप near by money बात कर सकते हैं. It is nearly money. It is not exactly money, but it is nearly money. Okay. So physical estate में we can take the examples of real estate, means property, your house, कोई भी ऐसी land हो सकता है, gold, jewelry, commodities, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें. तो दोज आर फिजिकली विजिबल, जिनको आप देख सकते हो कि आपने इस पे इन्वेस्ट किया है, तो वो तो हो गया आपका फिजिकल एसेट. बट व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल एसेट्स? फाइनेंशियल एसेट्स में यू कैन नॉट सी द एप्रोप्रिएट मटीरियल और एप्रोप्रिएट सब्सटेंसेस और कमोडिटीज, नथिंग. यू विल गेट ओनली वन रिसिप्ट और द सर्टिफिकेट लाइक दैट, कि अगर आपने FD करा दिया तो उसका आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी, इंश्योरेंस करा दिया या फिर कुछ भी बॉन्ड ले लिया, शेयर ले लिया, तो उसका आपको कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं दिखती. बट इट इज़ ऑल्सो सेम एसेट जो कि नियरली मनी कह सकते हैं. बट अगेन फिजिकली इसमें आपको स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखेगा. बट अगर हम फिजिकल एसेट की बात करते हैं तो आप देखते ही बोलेंगे कि येस, कि इसमें कुछ वैल्यू है. बट फाइनेंशियल एसेट इज नॉट लुक लाइक अ मनी, बट अगेन सेम वैल्यू एग्जिस्ट करता है. तो वी हैव टू ऑप्शंस हेयर. फिजिकल एसेट्स में वी कैन इन्वेस्ट एज वेल एज वी कैन इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स. नाउ द पॉइंट इज, financial options में we already covered that we have two types, two terms are given, like short term financial options and long term financial options. And we already learned this thing that long term is always preferable for the investment basically. But let's see what are the options that given under the category short term financial options. So first of all, as we all know, that is saving bank accounts. हर घर के पर्सन का एक सेविंग अकाउंट होता है. मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट के घर में सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होगा. इवन जितने मेंबर्स हैं सबका अकाउंट होता है. एंड विच ऑफर्स वेरी लो इंटरेस्ट, बहुत ही कम इंटरेस्ट हमें मिलता है, दैट इज 4 to 5%. बट इट इज़ नॉट 4 to 5, आई थिंक इट इज़ 3 to 4 ओनली राइट नाउ. दीज डेज आई थिंक 3 to 4%, 3 to 4 से ज़्यादा परसेंटेज कोई भी बैंक प्रोवाइड नहीं कर रहा टू आर सेविंग बैंक अकाउंट्स. Okay, then money market or liquid funds. Basically, it is like a mutual funds, not mutual funds, but it is like a, we can say कि एक तरीक mutual funds की तरह है. ठीक है, इसमें क्या है आपको basically mutual funds exactly नहीं है. So money market funds usually yield better returns than saving accounts. If you are investing your money in money market or liquid funds, you will get more interest rather than saving bank accounts. Okay, so आपको यहाँ पर मनी लगाना है. शॉर्ट टर्म के लिए आप देते जाएंगे थोड़ा थोड़ा मनी किसी पर्टिकुलर कंपनी को या किसी को, एंड यू विल गेट आफ्टर सम टाइम उसको प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट भी एंड आपका मनी भी. लेकिन उसमें प्रॉफिट, इसमें इंटरेस्ट रेट इज मोर, इज हायर इंटरेस्ट रेट व्हेन वी टॉक अबाउट सेविंग बैंक अकाउंट. देन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, FDs, एज यू ऑल नो. FDs में बेसिकली आपको टर्म डिपॉजिट कराना होता है. टर्म डिपॉजिट मीन्स एक पीरियड के लिए आप फिक्स्ड हो जाते हैं. यू कैन नॉट ब्रेक दैट पीरियड, दिस टर्म. एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड 30 days का होता है. इससे ऊपर आप कहीं भी जा सकते हैं. एंड हेयर बैंक जो है आपका इन्वेस्टर जो है बहुत लो रिस्क पे होता है. एंड अगर आपको लगता है कि आपको बीच में ब्रेक कराना है तो यू कैन ऑल्सो ब्रेक द FDs, बट उसका इन्वेस्टमेंट हमें नहीं, उसका हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है. हमारा सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ओनली दैट अमाउंट विल गेट. लेकिन आप आफ्टर द सम पीरियड, आफ्टर टर्म डिपॉजिट अगर आप कंप्लीट करते हैं
तो आपको कंप्लीट मिलता है फिर वो विद इंटरेस्ट. ओके, देन द नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस. सो लॉन्ग टर्म में फर्स्ट वन इज पोस्ट ऑफिस सेविंग्स. ये सबके आई थिंक घरों में होता भी होगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स की जाती हैं. लो रिस्क होता है बहुत ही इसमें, एंड बेसिकली इसमें इंटरेस्ट हमें अच्छा मिल जाता है 8% पर एनम विच इज़ पेड मंथली. आप हर महीने कुछ मनी डिपॉजिट कर सकते हैं एंड रोज आपको एवरी मंथ करना है. एफडी के अंदर तो आपने प्रॉपर अमाउंट को फिक्स कर दिया, बट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में यू कैन डिपॉजिट मंथली. ओके, मंथली जब आप डिपॉजिट करते हैं देन आपने 1000 दिया, फिर उसके बाद आपने 1000 दिया, तो आगे बढ़ता जाएगा. एंड आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि आपके हर एक अमाउंट पे एक इंटरेस्ट मिलता है आपको. एंड इवन जिसने अगर ये टाइम पीरियड पूरा किया पूरा, देन यू विल गेट एक्स्ट्रा बोनस ऑफ 10% ऑल्सो. जो भी स्कीम थी पोस्ट ऑफिस की, अगर आपने वो कंप्लीट किया टाइम पीरियड को, देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा बोनस. एंड अगर आपने वो नहीं कंप्लीट किया टाइम पीरियड को और आपने पहले ही विड्रॉ करा लिया, प्री मैच्योर विड्रॉल करा लिया, मीन्स अभी आपकी फाइनल डेट नहीं आई थी, देन द डिडक्शन ऑफ 5% इज लेवाइड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, तो वो काट लिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से, प्लस आपको 10% का बोनस भी नहीं मिलेगा. तो हेयर यू विल फेस लॉस इफ यू आर डूइंग प्री मैच्योर विड्रॉल इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स. देन वी हैव PPF, that is Public Provident Fund. Public Provident Fund बेसिकली एक लॉन्ग टर्म का सेविंग माना जाता है बेटा जी, विद इन अ मेच्योरिटी ऑफ 15 ईयर्स, जिसमें आपको 8% पर एनम आई थिंक सबको समझ में आ रहा है. पर एनम इज एनुअली वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, एंड कंपाउंडेड एनुअली होता है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता, कंपाउंडेड एनुअली लगता है. पीपीएफ जो है बेसिकली यू कैन ओपन इन एनी नेशनलाइज्ड बैंक में आप ओपन करा सकते हैं. एंड इफ यू हैव पीपीएफ अकाउंट, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन पीपीएफ, देन यू विल ऑल्सो रिलैक्सेशन फ्रॉम द टैक्स. ऑल्सो टैक्स से भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, टैक्स फ्री हो जाएंगे आप. ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल कंप्लीट योर 15 years पीरियड, यू विल गेट फुल अमाउंट. एंड देन अगेन अगर आप फिर से आप सोचते हैं कि प्री मैच्योर कराना है, तो यू कैन ओनली टेक आउट योर मनी फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर, यानी 7 years से पहले आप अपने मनी को विड्रॉल नहीं करा सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर आपका 50% का ही आपको क्रेडिट मिलेगा. एंड अगर आप 4th year इमीजिएटली कर लेते हैं, देन बहुत ही ज़्यादा आपको लो अमाउंट मिलने वाला है. मीन्स कि आप 7th year से पहले आप कराएंगे नहीं, कंप्लीट करते हैं तो यू विल गेट 8% कंपाउंडेड एनुअली. एंड इवन द टैक्स फ्री रिलैक्सेशन इज ऑल्सो गेट फ्रॉम द पीपीएफ पॉलिसी. ओके, देन यू विल सी द कंपनी फिक्स डिपॉजिट. कंपनी अपने अपने फिक्स डिपॉजिट कराती है. कैसे? दीज आर द शॉर्ट टर्म और 6 months और मिड टर्म, मीडियम टर्म वी कैन से. कंपनी छोटा छोटा पैसा बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है. बहुत सारे लोगों से कंपनी ने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस और सेमी एनुअली और एनुअली. दिस कैन बी ऑल्सो बी क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट. ये इकट्ठा होता जाएगा पूरा अमाउंट, एंड एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड इसमें 6 to 9% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा. एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस. और जब आपको ये पूरा अमाउंट मिलेगा, आपने छोटा छोटा अमाउंट कंपनी को देते गए एवरी मंथ सपोज कीजिए, तो आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड यू विल गेट 9% इंटरेस्ट. एंड जब आपको अमाउंट मिलेगा तो उसमें टैक्सेस को डिडक्ट किया जाएगा. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट इन कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स. ओके, देन द बॉन्ड्स इज ऑल्सो अ फिक्स्ड इनकम. इसमें आपको क्या करना है बच्चा, इन मोर देन 1 year आपको कंप्लीट करते जाना है. इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपने अपने बॉन्ड्स को सेल करते हैं. बेसिकली दिस इज अ प्रॉमिस शीट वी कैन से. अ बॉन्ड इज जनरली अ प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल. एक आपको दे दिया जाता है रिसिप्ट, जिसमें आपने का प्रॉमिस इज मेंशन कि आपको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट डेट भी पे किया जाएगा ऑन द स्पेसिफिक डे. एंड द स्पेसिफिक डेट इज कॉल्ड मेच्योरिटी डेट. बॉन्ड इज बेसिकली जो गवर्नमेंट
सेक्टर्स भी ओपन करते हैं, सेंट्रल भी एंड कॉरपोरेशन, इवन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस राइट नाउ ऑल्सो. तो दीज डेज प्राइवेट कंपनीज भी कर रही हैं. सो दीज आर द फिक्स्ड इनकम जो आपको दे दिया जाता है और 1 साल से ऊपर का टाइम पीरियड होता है. जो भी कंपनी को प्रॉफिट आएगा आपको भी प्रॉफिट आता है, प्लस आपको इंटरेस्ट मिलता है. वन डेट इज गिवन टू यू, specific date, that is the maturity date. So this is again one of the long term investment. And then the next one is mutual fund. Mutual fund basically company invest, बहुत सारे invested companies हैं आज के टाइम पे जो आप according to your choice, आपको जैसा ठीक लगता है उसके according आपको schemes provide किए जाते हैं, जिसके लिए आपको knowledge भी provide की जाती है by the mediators also, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ पाए. सो म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स आर इशूड एंड रिडीम्ड बाय द फंड मैनेजमेंट कंपनी ऑन द फंड्स नेट एसेट वैल्यू. सो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज फंड्स नेट एसेट वैल्यू विच इज़ डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग सेशन. तो जब ट्रेडिंग सेशन खत्म होता है, यहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, इसको भी आप बहुत छोटे टाइम के लिए नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो हेयर अगेन आफ्टर सम टाइम म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं. बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स विच आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन म्यूचुअल फंड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट आर मनी, इन विच बेसिकली वी कैन परचेज और वी कैन like we can take the share of any company, and जैसे जैसे कंपनी को प्रॉफिट अर्न होता जाएगा आपके शेयर में भी वो चीज़ ऐड होती जाएगी. जब जब वो ऐड होगी, वो ऐड किया हुआ अमाउंट यू कैन टेक एनी टाइम, किसी भी टाइम उस अमाउंट को आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ईजिली. ठीक है. बट द पॉइंट इज दिस इज आपका ये इस तरह की पॉइंट आएगा कि मनी मार्केट के कंपेरिजन में म्यूचुअल फंड्स जो है लॉन्ग टर्म में होते हैं, बट मनी मार्केट इज ऑन short-term instruments. So this is enough for today's class 10. Next topic will cover in the next session now. Thank you.